خواتین کے خلاف درندگی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ سوات میں رشتے کے تنازع پر دلہن سمیت 2 خواتین سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ بچوں کی حوالگی کے تنازع پر کوٹادو میں سابق خاوند نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوٹ رادھا کشن میں سسرالیوں نے بہو کو قتل کر دیا۔ ہوا کی ایک اور بیٹی سسرالیوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کوٹ رادھا کشن میں سسرالیوں نے بہو کو گلا دبا کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ سوات میں رشتے کے تنازع پر 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعہ سوات کی تحصیل براکوٹ میں پیش آیا۔ قتل ہونے والی ایک خاتون نے کل دلہن بننا تھا۔ پولیس کے مطابق فریقین کے درمیان فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، دوسرے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ کوٹ ادو کے تھانہ صدر موضع فقیر والی میں سابق شوہر نے فائرنگ کر کے سابقہ بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فائرنگ سے ایک بزرگ شہری زخمی بھی ہوا۔ مقتولہ کا قاتل سے بچوں کی حوالگی کا تنازع چل رہا تھا۔ پولیس تھانہ صدر نے کارروائی شروع کر دی۔ ویگن، نصیر آباد اور وارا کی نہروں میں زرعی پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ مشکلات سے گھرے کاشتکاروں نے قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ ویگن میں زرعی پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ آبادکاروں نے پانی کی قلت کے باعث قومی شاہراہ پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے سبب قومی شاہراہ بلاک ہو گئی۔ دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج کرتے ہوئے آبادکاروں کا کہنا تھا کہ زرعی پانی کی قلت کے باعث زمینیں بنجر ہونے لگی۔ آبادکاروں نے فوری طور پر پانی کی فراخمی کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ شاہراہ کی غفلت اور لاپرواہی۔ ضلع میرپور آزاد کشمیر کے قصبے چکسواری کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ حادثات معمول بن گئے، انتظامیہ کو ہوش نہ آیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ شاہراہ نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا۔ ضلع میرپور آزاد کشمیر کے قصبے چکسواری کی یونین کونسل فیض پور شریف کی رابطہ سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے راستے شہریوں کے لیے اذیت سے کم نہیں۔ قیمتی گاڑیاں ناکارہ ہونے لگی۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں جدید دور میں بھی اس طرح کی تباہ و برباد سڑکوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں نے منتخب نمائندوں کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا نمائندے جھوٹے وعدے کر کے ووٹ سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، لیکن شہر کے مسائل جوں کے تو رہتے ہیں۔ اہل علاقہ نے درپیش تمام مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا۔ تبدیلی کی گونج خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں تک نہ پہنچ سکی۔ اپر اورکزئی کے علاقہ قلجو کے سرکاری اسکول کے طلبہ اساتذہ کی کمی اور سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث تعلیم کے زیور سے محروم ہونے لگے۔ عصمت اللہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے صرف دعووں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ قبائلی ضلع اپر اورکزئی کے علاقہ تحصیل ہیڈ کوارٹر غلجو گورنمنٹ پرائمری اسکول میں اساتذہ کی کمی اور سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث تعلیم حاصل کرنا تو دور کی بات، طلباء کا قیمتی مستقبل تاریکی کی جانب گامزن ہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول غلجو میں 350 کے قریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مذکورہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اساتذہ کی کمی کے ساتھ ساتھ ایسے اساتذہ بھی ہے جو اکثر غیر حاضر ہو کر اسکول کا منہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ اسکول میں تعداد زیادہ جبکہ کمرے کم ہونے کی وجہ سے بعض کمروں میں 2 کمروں کے طلباء ایک ہی کمرے میں بٹھائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول غلجو میں نہ پانی، نہ بجلی اور نہ باتھ روم۔ خستحال عمارت میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اسکول میں فرنیچر نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اکثر بچے زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ طلباء نے صوبائی وزیر تعلیم سے اسکول میں اسٹاف کی کمی پورا کرنے، اسکول میں کمرے اور باتھ روم بنانے، فرنیچر کی فراہمی اور بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع اورکزئی۔ منڈی بہاؤدین کا سرکاری اسپتال تمام تر سہولیات سے محروم ہے۔ منتخب نمائندے بھی شہر کی 6 لاکھ آبادی والے شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا وعدہ وفا نہیں کر سکے۔ ڈسٹرکٹ اولڈ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی خالی عمارت بھوت بنگلہ بن گئی ہے۔ عرفان وڑائچ کی رپورٹ دیکھیے۔ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کو یہ کہہ کر نئی عمارت میں شہر سے باہر 6 کلومیٹر دور ویران مقام پر منتقل کر دیا گیا کہ جیسے ہی PC1 منظور ہوگا ہسپتال کا عملہ واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن ایمرجنسی کی سہولت کام کرتی رہے گی۔ 1.5 سال قبل پرانے اسپتال کی 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے تزئین و آرائش کی گئی، لیکن اسپتال بند ہونے سے یہ خطیر قومی سرمایہ ضائع ہو گیا ہے۔ 6-7 لاکھ آبادی کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ جو ایک بنیادی سہولت یہاں مہیا تھی اس کو یہاں سے ختم کر کے نئے DSQ ہسپتال میں منتقل کر دیے گئے، بجائے اس کے کہ اس کی نیو اسینی جو ہے وہ منظور کرائی جاتی۔ پنجاب گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے 6 لاکھ کی آبادی والے شہر کو سٹی ہاسپٹل یا تحصیل ہاسپٹل اس کو مکمل کیا جائے۔ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کی دہلیز پر وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے پرانے DHQ اسپتال کی عمارت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤدین۔
कोट सफजल के इलाका संजरपुर में वाक़या तारीखी किला फाजलपुर कब्जा माफिया के कंट्रोल में है। महकमा आसार कदीमा की इंतजामिया बेबस नजर आती है। हमादुल्ला रिपोर्ट करेंगे। कोट सफजल के इलाका मशहूर तारीखी किला फाजलपुर, जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है, इंतजामिया समेत महकमा आसार कदीमी भी बेबस नजर आ रहे हैं। संजरपुर से 4 किलोमीटर के फासले पर किला फाजलपुर के आसपास और किला के अंदर कब्जा माफिया ने गैर कानूनी तामीरात करके रिहाइश इख्तियार कर ली है और कब्जा जमाकर किला की तारीख तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। किला की दीवारों को गिराकर उसके अंदर तामीरात करके किले के कुदरती हसन को पामाल कर दिया गया है। एहलियान इलाके का ये भी कहना है कि इस किले में जब से कच्चे के लोगों ने कब्जा किया है, इलाके में जराइम बढ़ गए हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DC और रहीम यार खान और आला हुकाम से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मादुल्ला, सच TV, कोट सफजल। 70 सालों से टांग शहर पानी जैसी नेमत से महरूम है। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आते हैं। आदम खान कुंजी रिपोर्ट करेंगे। टांग सिटी साफ पानी जैसी नेमत से 70 सालों से महरूम है। दूर दराज से लोग पीने का साफ पानी बोरिंग से भरकर ले जाते हैं। साबिराबाद, शेख हवाला, महल्ला पुल शाह, कुतुब कॉलोनी, रजाक कॉलोनी का पानी कई कई दिन तक गायब रहता है। करोड़ों का फंड आता है और गायब हो जाता है। छोटे बच्चे सारा दिन घर का पानी भरते रहते हैं। टांक में कुल 28 बोरिंग हैं, जिनमें 6 चालू हालत में जबकि बाकी खराब पड़े हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, सच न्यूज, टांक। अक्टूबर टेक सिंह शहर में मुज़र सेहत पानी की सप्लाई का सिलसिला जारी है। गंदा पानी पीने से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरी कहते हैं कि शिकायत के बावजूद कोई नोटिस नहीं लेता। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। अक्टूबर टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस मुख्तलिफ वाटर वर्क्स से शहर में गंदे और मोदरे सेहत पानी की सप्लाई का सिलसिला जारी है। वाटर वर्क्स में जगह जगह जड़ी बूटियां और गंदगी के अंबार हैं। वाटर वर्क्स से गंदे और मोदरे सेहत पानी की सप्लाई की वजह से शहरी पेट और मैदे की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अक्टूबर टेक्सिंग में वाटर सप्लाई के पानी के हवाले से तो वो इतनी बुरी हालत है कि जो वाटर वर्कर्स हैं वहाँ पे पानी के ऊपर काई जमी हुई है, गंदगी पानी के अंदर है। वही पानी जो है वो लोगों को घरों में मिलता है और उससे जो बीमारियां हैं, जिसमें हेपेटाइटिस C और B और दीगर बीमारियां जिन्हें ने वो लाक होती हैं। शहरियों ने वज़ीर पंजाब समेत आला हुकाम से फौरी तौर पर शहर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सी। रहीम यार खान जनूबी पंजाब का एक बड़ा शहर है, जहां पीने का साफ पानी न होने के बराबर है। हेपेटाइटिस के फैलाव की एक बड़ी वजह साफ पानी का न होना भी है। रहीम यार खान से हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान जनूबी पंजाब का एक बड़ा शहर है, जहां पीने के साफ पानी न होने के बराबर है। हेपेटाइटिस के फैलाव की एक बड़ी वजह साफ पानी का न होना भी है। आवाम को साफ पानी देने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रहीम यार खान और महकमा पब्लिक हेल्थ ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाटर फिल्टर प्लांट लगाए, लेकिन ये प्लांट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नाअहली और करप्शन की नजर हो गए। फिल्टर प्लांट के ना तो फिल्टर तब्दील किए जाते हैं और ना ही इनकी सफाई का कोई इंतजाम है। टूटियां, नल खराब पड़े हैं, जो कि नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा है कि इस प्रोजेक्ट से काला धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही अवामी मसाइल और मुश्किलात में इजाफे के बाद शब कदर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। सैयद नादिर शाह रिपोर्ट करेंगे। चारसदा के हल्का इन-23 अवामी मसाइल और मुश्किलात में इजाफा और इन-23 के MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा की मुसलसल गफलत और लापरवाही के बायस तहसील तंगी के सैकड़ों अवाम ने 25 किलोमीटर रैली निकालकर तहसील शबकदर दरियाब कुरूना के मकाम पर इन-23 PTI के MNA मलिक अनवर ताज की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने सियाह झंडे उठाकर MNA के खिलाफ नाराबाजी की। एहतजाजी रैली और धरने में PTI के दर्जनों कारकुनान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि MNA इन-23 तरक्याती मंसूबों में हमें मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में आए रोज इजाफा हो रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने धमकी देते हुए कहा कि 1 माह के अंदर हमारे जायज मुतालिबात पूरे किए जाए। बसूरत दीगर MNA इन-23 की रिहाइशगाह के सामने सख्तगीर एहतजाजी धरने शुरू करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी
MNA N23 پر عائد ہوگی۔ مظاہرین کو تانا خواجہ پولیس نے پرامن طور پر منتشر کر دیا، جبکہ MNA N23 وفاقی پارلیمانی سیکرٹری دفاع ملک انور تاج کے چچا نے مظاہرین کے خلاف تانا خواجہ میں FIR درج کر دی۔ سید نادر شاہ، سچ نیوز، شب قدر۔ ٹنڈو جام تعلیمی ادارے ایک ہفتے مزید بند کرنے کے خلاف ٹنڈو جام کے مختلف اسکولوں کے طلباء اور والدین سراپا احتجاج ہیں۔ رپورٹ کریں گے جنید علی بھٹی۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے ایک ہفتے مزید بند کرنے کے خلاف ٹنڈو جام کے مختلف اسکول کے طلباء و طالبات والدین نے احتجاج کیا۔ والدین اور طلباء نے تعلیم دشمن پالیسیوں کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے بازی لگا رہے تھے۔ اس موقع پر والدین اشفاق سپیو، طارق میمون، عاطف راجپوت، طلباء آمنہ امیمہ موزم کا کہنا تھا پہلے ہی 2 سالوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سندھ کے لاکھوں طلباء و طالبات کی تعلیم تباہ ہو گئی۔ گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں SOPs کا بڑا خیال کیا جا رہا ہے۔ میں خود ایک والدین ہوں، میرے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ طلباء و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب تعلیمی ادارے مسلسل بند کرنا زیادتی ہے اور طلباء و طالبات کا مستقبل تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 صوبوں میں تعلیمی عمل جاری ہے، جبکہ سندھ حکومت نے 2 سالوں کے بعد 23 اگست کو تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا تھا، جو کہ اب 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ ظلم و زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت فور تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کرے تاکہ طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر سکے۔ کیمرامین محمد شریف مٹو کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام۔ علاقائی خبر نامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سکے قاتل کرونا، ایک دن میں 65 زندگیاں نکل گیا، 24 گھنٹوں میں 3084 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے سائے گہرے ہونے لگے۔ کورونا وائرس سے ایک دن میں 65 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 24,848 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,19,970 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,084 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,78,288، سندھ میں 4,18,478، خیبر پختونخوا میں 1,55,712، بلوچستان میں 31,781، گلگت بلتستان میں 9,579، اسلام آباد میں 95,709، جبکہ آزاد کشمیر میں 30,423 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,71,00,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,06,078 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملتان میں کورونا کی چوتھی لہر سے متاثرہ مریضوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر کورونا وارڈز میں بیڈز اور وینٹیلیٹر کی تعداد بڑھا دی گئی، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہر شہری کی ویکسینیشن کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے۔ احمد کاشف کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں کورونا وائرس کی چوتھی خطرناک لہر اور مریضوں میں متوقع اضافے کے پیش نظر نشتر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نشتر میں کورونا کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تعداد کو 200 سے بڑھا کر 315 کر دیا گیا ہے، جبکہ آئسولیشن بیڈز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آئسولیشن بیڈز کی تعداد 128 سے بڑھا کر 224 کر دی گئی ہے۔ ICU وارڈز میں بیڈز کی تعداد کو بھی 72 سے بڑھا کر 91 کر دیا گیا ہے۔ نشتر ہسپتال میں کورونا وینٹیلیٹر کی تعداد بھی 70 سے بڑھا کر 79 کر دی گئی ہے، جبکہ کورونا وارڈ میں ڈاکٹر، طبی عملہ میں حفاظتی لباس اور ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی کورونا ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ہر شہری کو ویکسینیشن کرانے کا ہدف ہر صورت مکمل کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضلع کے تمام سینٹرز میں ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے عوام کو حفاظتی SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ احمد کاشف، سچ TV، ملتان۔ مظفر گڑھ کے تھانہ خانگڑھ کی حدود میں چور بے لگام ہو گئے۔ 15 روز میں سینکڑوں وارداتیں ہوئی، چور زیورات، نقدی سمیت لاکھوں کا سامان لے اڑے۔ متاثرین سڑکوں پر نکل آئے، پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ محمد اجمل رپورٹ کریں گے۔ مظفر گڑھ کے نوائی تھانہ خانگڑھ کی حدود میں چور بے لگام ہو گئے ہیں۔ اسلحہ سے لیس 10 رکنی چور گینگ نے پچھلے 15 روز میں سینکڑوں گھروں کا صفایا کر دیا ہے۔
चोरों ने एक ही रात में एक ही बस्ती में 10-10 वारदातें करना मामूल बना रखा है। मकामी पुलिस शहरियों को जानो माल और इज्जत का तहफ्फुज देने में नाकाम हुई तो मुतासरीन सड़कों पे निकल आए। शहरियों ने कहा कि रात को असला से लैस चोर दंदनाते फिरते हैं। चोर घरों में घुसकर छत्ते काटकर पिछले 15 रोज में बस्ती सदीकाबाद के कुर्बो जवार में सैकड़ों वारदातें कर चुके हैं, मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कोई भी इकदामात नहीं उठाए। की वारदातों से तंग आकर मुतासरीन ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और आईजी पंजाब से फिल फॉर नोटिस लेकर यहाँ के इलाका मकीनों को जान माल और इज्जत के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। जराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए। मेलसी में 3 डाकू दुकानदार से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मेलसी में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू दुकानदार से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई, जबकि क्राइम सीन की टीम को तलब कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राज तांदियावाला के नवाही इलाके में काम न करने पर बासर जमींदार आपे से बाहर होकर मजदूर नौजवान और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिपोर्ट देखिए। तहसील तांदरमाला के नवाही चक नंबर 616 गांव में काम न करने पर बासर जिम्मेदार आपे से बाहर हो गया। मजदूर नौजवान और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासरा नौजवान की अपने बच्चों समेत जान के तहफ्फुज और इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील। तहसील तांदरमाला के नवाही चक नंबर 616 गांव के रहशी मुजम्मिल ने अपने बच्चों समेत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कुम्हार है और लोगों के साल भर काम करता है, जिसकी उजरत वो साल बाद गंदुम की सूरत में वसूल करता है। बासर जिम्मेदार शाहिद, उसामा और बाकर वगैरह ने मुझे घर मिट्टी और रेत लाने को कहा तो 2 दिन तखीर किया हुई तो मजकूरा मुल्जमान तैश में आ गए और मजीद गुंडों के हमरा मेरे घर पर दावा बोल दिया। बासर जिम्मेदार असलहा, कुल्हाड़ी और सोटों से लैस थे। आते ही मुझे और मेरे बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। मजदूर नौजवान ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और आरपीओ फैसलाबाद से मजकूरा मुल्जमान के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए सख्त कार्रवाई करने और जान के तहफ्फुज का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। खैरपुर का पुलिस एहलकार जमील अहमद की हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर पुलिस का एहलकार जमील अहमद कलोड़ो ने खैरपुर रेलवे स्टेशन पे 8 मुहर्रम अल हराम में दौरान ड्यूटी ट्रेन के जरिए जियारत के लिए रोड़ी जाने वाले ज़ायरीन में से एक ज़ायरीन जो कि ट्रेन से गिर गया था, उसको ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। उसकी एक पुलिस हेडक्वार्टर खैरपुर में एक सादा पुरवकार तकरीब हुई। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीआईजी सखर और एसएसपी खैरपुर ने पुलिस एहलकार को सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा। पुलिस एहलकार को अच्छे काम की वजह से वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से भी इनामात का ऐलान किया गया है। उस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, विंग कमांडर रेंजर सचल अंजमन ताजरान की जानिब से इनामात और अजर रख दिए गए। पुलिस एहलकार ने अच्छा काम करके पुलिस महकमे की इज्जत को बढ़ाया है। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सच न्यूज खैरपुर। मर्दान के मुख्तलिफ मकामात पर 500 पौधे लगा दिए गए। शजरकारी मुहिम में खुसूसी बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। मर्दान में इंडिविजुअल लाइन्स की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर 500 पौधे लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा पनाहगाह बोर्ड की चेयरपर्सन नीलम तुन ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम में सेंटर फॉर स्पीच के स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में एमएनए शाहीनाज और पीटीआई खवातीन विंग के अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर नीलम तुरू ने कहा कि हमारा मुल्क ग्लोबल वार्मिंग में 5वें नंबर पे है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 4 to 5,000 ट्रीज का हमने ये इरादा किया कि हम फ्रूट ट्रीज लगाएंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तेजी से हो रही है, हमारा मुल्क पहले 5 मुल्कों में से, दुनिया में पहले 5 मुल्कों में आता है ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से। तो ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे हम कर सके वहाँ पे हम पौधे लगाएं। और इसके जिम्मेदारों ने कहा कि इस तरह दूसरे मंसूबों पर काम जारी है और बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में वो मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मुख्तलिफ जगह पे लगा रहे हैं। आज मैंने खुद आके ये देखा है, इनके साथ मिलकर पौधे लगाए हैं। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद जब ये पौधे तनावर दरख्त बनेंगे तो हमें अच्छी छांव मिलेगी। इस मुहिम के लिए पौधे महकमे जंगलात की जानिब से फराहम किए गए थे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन को पूरा करने के लिए इस मुहिम में 5,000 पौधों का हदफ रखा गया है।
मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने RHC सनानवा अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखेंगे। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी ने RHC अस्पताल सिनावा का अचानक दौरा किया। हनीफ खान ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड्स का मुआयना किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों से मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त की। सफाई न होने पर अमले की सरजनिश की। हनीफ खान पताफी ने स्टाफ हाजिरी चेक की। अस्पताल में स्टाफ की कमी और मेडिसिन के इशू को भी नोट कर लिया। उनका कहना था कि RHC अस्पताल सिनावा में जो भी मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीन सेंटर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहता हूं कि तमाम लोग कोरोना वैक्सीन करवाएं ताकि अपनी जिंदगी का ख्याल रखें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। अंधेरों को उजालों में बदलना है। डेरा गाजी खां के 50 देहातों को बिजली की फराखमी मुमकिन बना दी गई। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने अपना वादा पूरा कर दिया। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट। डेरा गाजी खान मोहतरमा जरताज गुल वफाकी वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ने इलेक्शन से जो पहले नारा लगाया था कि हम डेरा गाजी खान की इन बस्तियों में उजाला लेकर आएंगे, जिन बस्तियों को सरदारों ने इक़्तिदार से पहले आज तक बिजली से महरूम रखा हुआ था। जो मेरा अपने एरिया 191 में है, वहाँ पे हम 2 बस्तियों जो इसका मुझसे डिमांड की थी मेरे वर्कर थे और मैंने इलेक्शन में उनसे वादा भी किया था, बस्ती जार वाला और बस्ती पुराई वाला। 40 साल के बाद पहली दफा उनके पास बिजली आई, बल्कि इससे भी पहले की उनकी डिमांड थी, मगर सरकारों ने कभी उनकी डिमांड पूरी नहीं की। मोहतरमा ने अपना वादा वफा करते हुए DG खां की 50 से ज्यादा बस्तियों में बिजली पहुँचा दी। मोहतरमा जरताज गुल ने अपने फंड से इन बस्तियों के मुकीनों की जिंदगी में रोशनी भर दी। मैंने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। कैमरा मैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। सिंध के शहर कंदकोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा इस्तेमाल करने की अशिया कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अब्दुल्ला बरूही रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर भी अब आवाम को रोजमर्रा के एशिया सस्ते दामों में देने से कसर हो गया। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कंदकोट शहर में अब तो गरीब मजदूर लोग यूटिलिटी स्टोरों से भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाले चीज आटा, चीनी, चाय के पत्ती, चावल, घी, तेल, दालें, नमक, मिर्च, हत्ता के माचिस के भी कीमतें बढ़ा दिए गए हैं। सामान बाजार से खरीद रहे थे, वही सामान हमें यूटिलिटी पे महंगा मिल रहा है। घी, आटा, दाल, चीनी वही भी बिल्कुल उरूज पे मिल रहा है हमें। हम गरीब अवाम कहाँ जाएं? माचिस तक 7 रुपए का रेट बन गया माचिस का। गरीब अवाम क्या करें, क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या पिए? यूटिलिटी स्टोरों पे जो है वो महंगाई बढ़ गई। आटा की, चीनी जो है इन्होंने उनके दाम बढ़ा दिए हैं। गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? लोग महंगाई का रोना रोते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाले चीजों का रकम कम किया जाए ताकि हम अपने घर के लिए चीजें सस्ते कीमतों पर खरीद सकें। मुल्क भर की तरह सराय मुगल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब मेहनत कुछ तबके का जीना दुश्वार कर दिया है। सराय मुगल की 7,000 आबादी के लिए एक भी यूटिलिटी स्टोर्स का न होना लम्हा फिक्रिया है। गुलाम अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सराय मुगल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब मेहनत का तबके का जीना दुश्वार कर दिया है। सराय मुगल की 60,000 आबादी के लिए एक भी यूटिलिटी स्टोर ना होना लम्हा फिक्रिया है। गिराफरोश अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इन माफिया के आगे बेबस दिखाई देती हैं। घी, चीनी, दालें नायाब हो चुकी है। आखिर जाएं तो जाएं कहां? हमें तो ये होता है रात पड़ती है तो चलो बच्चों के पास जो बना 100-200 लेके चलो जी। सुबह सुबह होती है तो फिर इधर तो ये काम ऐसा है, फौत की हुई है आपकी, अल्लाह माफ करे, तो वो फौत की आपकी पड़ी है, पहले काम करना है, नहीं तो वो समझ लो कि सब कुछ आपका गया, फिर जो मजदूरी है वो भी गई। इंसान का पेट बसर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया और इस चैलेंज को अबूर करने के लिए गरीब आदमी दिन रात मेहनत कर रहा। मेहनत के बावजूद उसका घर का सरकट नहीं चल रहा। ऐसी पतों की सराय मुगल के साथ सुतेली मां जैसा सलूक क्यों कर रहा है? उसको चाहिए कि सराय मुगल में भी यूटिलिटी स्टोर कायम करे ताकि गरीब मेहनत का तबका भी सस्ती अशिया खरीद सके। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच TV, सराय मुगल। बढ़ती महंगाई ने जहां अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा किया, वहीं अब नया घर बनाना भी किसी इम्तहान से कम नहीं रहा। बिल्डिंग मटेरियल महंगाई ने जहां अशियाए खुर्द-ओ-नोश और अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं पे गरीब आदमी के लिए अब नया मकान बनाना भी एक ख्वाब से कम नहीं। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अब छोटा सा घर बनाना भी एक ख्वाब है। शहरियों का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमें सख्त दुश्वारी का सामना है कि अपना घर बनाएं तो कैसे बनाएं। ये जो नई हुकूमत आई है ये गरीबों के लिए नहीं आई,
ये गरीबों को खत्म करने के लिए आई है। मैं कहता हूँ पेट पालना भी खाली मुश्किल है तो घर बनाना दूर की बात है। गरीब आदमी कहाँ जाए? पहले भी हुकूमतें थी, उनमें तो चलो कारोबार तो आदमी आसानी से कर सकता था। खाना पीना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, मकान बनाने वाली तो सोच भी नहीं रह सकता। ईंट जो है ना, एक ईंट 8 से 9 हज़ार रुपया पर हजार है, सीमेंट 700-800 की बोरी है, ठीक है। रेत कुछ इधर आप ले लो, जो मिस्त्री मजदूर जो है, मिस्त्री 1500 रुपया दिहाड़, मजदूर 1000 रुपया। इम्पॉसिबल, आई थिंक सो के आम बंदा मिडिल क्लास मेरे जैसा वो सोच भी नहीं सकता घर बनाने के बारे में। नया घर बनाना अब गरीब के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाने के मुतरादिफ है। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी अपना मकान नहीं बना सकता। बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई की वजह से इस वक्त गरीब और मुतवसत तबका अपना घर बनाने से कोसों दूर है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। यूटिलिटी स्टोर्स ही गरीब और मुतवसत तबके के लिए उम्मीद की किरण थे, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश और दीगर अशिया के सस्ते दामों खरीदारी का हक छीन लिया गया। अहमदपुर सियाल से रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। स्टोर्स ही गरीब के लिए उम्मीद की किरण थे, लेकिन महंगाई के जिन ने अब यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर लिया है। आवाम से अब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश और दीगर अशियाए जरूरिया के सस्ते दामों खरीदारी का हक छीन लिया गया है। पहले ही ओपन मार्केट में तमाम जरूरी अशिया की कीमतों ने अवाम उन्नास के होश उड़ा दिए थे। ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की वार के जद में आकर गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हम पुरजोर अपील करते हैं कि महंगाई में कमी की जाए। तब्दीली के दावेदार हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे ठुस हो गए हैं। गरीब मुकाव के एजेंडे पर अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल में प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों में इस्तेकाम लाने में बुरी तरफ नाकाम हो चुकी हैं। गरीब अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के तूफान के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ महमूद के साथ तसव्वुर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। आरिफ वाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी का मसला हल न हुआ। बाजार में चीनी, आटा और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग बाजार से महंगे रेट चीनी, आटा, घी, दालें वगैरह खरीदने पर मजबूर। दिहाड़ीदार तबका परेशान। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 120 रुपए चीनी, 320 रुपए घी और 2300 रुपए मन आटा कैसे खरीदे? लोगों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है, तो चीनी नहीं मिल रही, अवाम बहुत परेशान है, गरीब अवाम है कि अगर दूसरे स्टोर से जाते हैं तो उससे महंगी बड़ी है, गरीब अवाम किधर जावे? जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए है तो वो जाके 1000 रुपए की थैले का आटा कैसे ले? आटा भी बहुत महंगा है, चीनी भी बहुत महंगी है, ऊपर से हर माह पेट्रोलियम की कीमत ही बढ़ा दी जाती है। गरीब बंदा केड़े पास जावे? ना कुछ चीनी खरीद सकता है, ना कुछ सब्जी खरीद सकता है। कोई तब्दीली नहीं आ रही है। खान साहब तो बहुत तब्दीलियों के साथ ऐसे लोगों का बुलाया हुआ है। मजीद इनका कहना है कि तब्दीली सरकार की हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स पर तो कोई चीज मिलती नहीं, बाजार से खरीद नहीं सकते। दिन ब दिन इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। गरीब आवाम की तब्दीली सरकार को दुहाइयां, महंगाई कम करने की अपील। जैसा कि आपने लोगों का रद्द अमल सुना कि महंगाई इतनी है, आटा, चीनी, दालें वगैरह इतनी महंगी हो चुकी हैं, इवन सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार तबका बहुत ही परेशान है। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। लिया समेत जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर पर नई कीमतों की वसूली शुरू। जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के घी, कुकिंग ऑयल, चाय और अचार भी महंगे कर दिए गए। केचप, माचिस, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर चाय की पत्ती के 950 ग्राम के पैकेट पर 40 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जबकि हार्पिक की 1 लीटर बोतल की कीमत में 49 रुपए का इजाफा किया गया। माचिस के पैकेट की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया। ब्रांड डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर 50 रुपए, जबकि जैतून तेल की कीमत में 51 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच टीवी। इस्लामी हुकूमत के तसव्वुर का ये इम्तियाज
پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کا مرکز اللہ تعالی کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن کے احکام و اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدیں مقرر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت قرآنی احکام و اصولوں کی حکومت ہے۔